Hello everybody. Now in today's session, we are going to start one more concept from the object-oriented programming, and that is named as a polymorphism. So up till we have seen the various concepts from the object-oriented programming, that is classes we have seen, objects we've seen. After that, function overloading, inheritance. Then we have seen passing the parameters from derived class constructor to base class constructor. Before that, we have seen default arguments. So number of the things or number of the concepts from the object-oriented programming we have covered. Now we left only about 2 to 3 concepts from the object-oriented programming. So today we are going to start with the polymorphism. So in the first session itself, we have seen what is the definition of a polymorphism. That very simple definition or simple example I have given to you. Like suppose our mother. So our mother is a human being, but still sometimes she is playing a role of a sister. Means same personality, same personal is going to perform the role of a sister, perform the role of a friend, perform the role of a mother-in-law, sister-in-law, daughter. So number of roles she is playing. So in the same way, suppose there is one function and the same function you are utilizing for the different purposes. So that is called as a polymorphism. Polymorphism means एक ही चीज को हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से क्या कर रहे हैं, उसको यूज करेंगे. लाइक सपोज देयर इज अ फंक्शन ड्रॉ. So using draw, you can draw a circle. Using draw, you can draw a rectangle, polygon, hexagon, whatever you want. So you can draw using only that function draw. What you have to change? You have to change only the parameters. Like what parameters you have to pass, and depending upon the parameters, that function is going to execute. So that is nothing but the polymorphism. So polymorphism means one form multiple interfaces. माना एक ही फॉर्म लेकिन उसको कैसे यूज करेंगे, अलग अलग तरीके से यूज करेंगे. So this is the very simple definition of the polymorphism. So let's see the definition. So this polymorphism word comes from the poly plus morphism, where poly means many and morphism means forms. Okay, means you have a many forms. So very simple definition of a polymorphism is one interface and multiple methods. माना एक ही इंटरफेस रहेगा और उसको हम कैसे यूज करेंगे, मल्टीपल तरीके से यूज करेंगे. Like we already finished function overloading, and in function overloading you come to know that suppose there is a function volume. So volume we can use to find the volume of a cylinder, volume of a cone, volume of a whatever you want, volume of a cube. Okay, so suppose area is function is there, so you can use the area function itself to find the area of rectangle, to find the area of square, to find the area of circle, to find the area of whatever you want. Okay, so polymorphism means many forms. This usually refers to be able to access different types of objects through a common base class, specifically using a pointer of the type of a base object to point to objects which derive from that base class. Okay, this definition is nothing for function overloading. This is the definition for the virtual function. Okay, so currently we have to focus only over the function overloading, as well as there is one more concept, that is the operator overloading. Okay, so we have to check this definition only for that purpose, that is a function overloading and operator overloading. Okay, so there are two types of polymorphism, compile time polymorphism and second is runtime polymorphism. कौन सा है, compile time है and second is runtime polymorphism. So this compile time polymorphism is also called as early binding. This runtime is called as a late binding. This is called as a static binding. This is called as a dynamic binding. Different names are there here. इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अर्ली बाइंडिंग भी बोलते हैं या फिर स्टैटिक बाइंडिंग भी बोलते हैं. Okay, and here this runtime polymorphism is called as a late binding, और इसको ही दूसरा नाम है डायनामिक बाइंडिंग. So these are the types of polymorphism. First, very simple to keep in mind, compile time polymorphism. There are two applications of compile time polymorphism, that is function overloading and operator overloading. And in runtime polymorphism, there is only one example or only one application, that is a virtual function. Okay, so what happened in compile time polymorphism? Compile time polymorphism means during compilation, the compiler comes to know that which function or which operation will get to be executed. That is the speciality of the compile time polymorphism. माना जब आपका प्रोग्राम कंपाइल हो रहा है
तभी कंपाइलर को पता चल रहा है कि भाई कौन से ऑब्जेक्ट को कौन सा फंक्शन एक्सेस करना है, ओके, या फिर कौन से ऑब्जेक्ट को कौन से फंक्शन का कनेक्शन देना है. दैट will be prior to know during the compilation. But in runtime polymorphism, what happens? During the runtime, compiler comes to know that which function will get executed for that particular code of segment. Okay, means during runtime, जब आपका प्रोग्राम रन हो रहा है, अभी आपका कंपाइल हो गया है, अभी आप रन मोड में हो, आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, आपके सामने कंसोल है, ब्लैक स्क्रीन है कंसोल वाला, and during that the compiler taking a decision now which function he has to execute for that particular call. So that is called as a runtime polymorphism. अब ये कंपाइल टाइम क्यों बोलते हैं? क्योंकि पहले ही हो रहा है, ड्यूरिंग कंपाइलेशन अर्ली हो रहा है, अर्ली पता चल रहा है अपने को कि भाई कौन सा फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है. So that's why it is again called as a early binding. Binding means you are making a connection in between the call and the definition. So that's why it is called as a binding. You are getting to be connected to the function definition or a function call. So that is called as a binding. So पहले ही पता चल रहा है इसलिए इसको early भी कहते हैं. That's why it is also called as a static. लेकिन कंपाइल होने के बाद पता चल रहा है कि कौन सा फंक्शन एग्जीक्यूट करना है, माना लेट पता चल रहा है, तो that's why it is called as a late binding. और डायनामिक इसलिए भी कहते हैं क्योंकि ये ड्यूरिंग रन टाइम हमको पता चल रहा है, इसलिए भी हम उसको क्या करते हैं, डायनामिक बाइंडिंग कहते हैं. So you can keep in mind there are two types of polymorphism: compile time polymorphism, second is a runtime polymorphism. Compile time polymorphism is itself called as a early binding or static binding, and runtime polymorphism is called as a late binding as well as dynamic binding. Okay, so this compile time is called as a early binding or static binding, and runtime polymorphism is called as a late binding or dynamic binding. Examples or applications of compile time: function overloading and operator overloading. And runtime polymorphism का application कौन सा है? Virtual function. बोलते जाओ मेरे साथ मन ही मन में, okay? अदरवाइज अगर सुनते रहोगे, ये बोलोगे नहीं, तो फिर कभी ध्यान में नहीं आएगा. तो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म दो टाइप्स: फंक्शन ओवरलोडिंग, सॉरी एप्लीकेशन ऑपरेटर ओवरलोडिंग, और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का एप्लीकेशन वर्चुअल फंक्शन. सो लेट्स फोकस ओवर दिस टू. तो ये तो हमने फिनिश कर लिया फंक्शन ओवरलोडिंग का कांसेप्ट. नाउ वी हैव टू फोकस ओवर द ऑपरेटर ओवरलोडिंग. नाउ as I already mentioned, in function overloading you are having only one function, and that function you are utilizing in different ways depending upon the types of parameters. In the same way, in operator overloading, what is going to happen? Now we are having a number of operators. Okay, in C or in C++ we are having a number of operators. So that number of operators we can use for the different purposes. Like suppose there is a plus operator. So you always know that plus is used to perform addition between the integers or addition between the floats. Okay, but using the concept of this polymorphism, we can use this plus operator to perform the addition in between the two objects. अब ऑब्जेक्ट आपको पता है, ऑब्जेक्ट इज नॉट अ सिंगल एंटिटी, लेकिन ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है, बहुत सारे डेटा मेंबर्स है. जैसे यहाँ पे मैं बताता हूँ, जैसे हमारा सैंपल होगा सैंपल S1, S2. Okay, so we can directly write like this one, S1 plus S2 like this. अब आपको पता है कि S1 के अंदर 3 डेटा मेंबर्स होंगे, S2 के अंदर 3 डेटा मेंबर्स होंगे, यहाँ पे भी ABC है, यहाँ पे XYZ है. So you can directly perform the addition in between the S1 and S2. तो S1 plus S2 हो रहा है, मीन्स क्या हो रहा है, A plus X, B plus Y and C plus Z. क्योंकि यहाँ पे ABC है, यहाँ पे XYZ है. तो ये S1 plus S2 हो रहा है, मीन्स क्या हो रहा है, यहाँ पे आप E की एडिशन X के साथ कर रहे हो, B की एडिशन Y के साथ कर रहे हो, एंड C की एडिशन Z के साथ कर रहे हो. सो अब देखो, अब तक तो हम लोग क्या कर रहे थे, नॉर्मली वो परफॉर्मिंग द एडिशन बिटवीन द इंटीजर्स और इंटीजर फ्लोट, फ्लोट इंटीजर और फ्लोट्स. ओके, बट यूजिंग द कांसेप्ट ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, नाउ यू आर गोइंग टू ओवरलोड दिस प्लस ऑपरेटर. अभी तक प्लस किसके लिए, सिंपली इनबिल्ट डेटा टाइप्स के लिए, लेकिन अभी आप प्लस एडिशन किसके बीच में कर रहे हो, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स के बीच में. अब तक हम बिल्ट इन डेटा टाइप्स, दैट इज इंटीजर, फ्लोट, उसमें ही एडिशन कर रहे थे, लेकिन अभी हम किसके बीच में डायरेक्टली एडिशन कर पा रहे हैं, who are able to perform the addition between the user defined data types. Now this sample is a class, this is now your user defined data type, and these are the objects, and now you are able to perform directly the addition between S1 and S2. अब तक क्या हो रहा था, हम लोग कैसे लिख रहे थे, S1 डॉट सम. कल का एग्जाम्पल, सपोज आपने कल का सेशन अटेंड किया होगा तो, या फिर देखा होगा तो,
S1 डॉट सम इन ब्रैकेट S2, ऐसे लिखे थे हमने कल। यहाँ पे देखो अभी तक क्या हो रहा था, जब हम पढ़ रहे थे फ्रेंड फंक्शन पढ़ रहे थे या फिर और भी कोई कंसेप्ट पढ़ रहे थे, तो उसमें हम लोग क्या कर रहे थे, सम फंक्शन लिख रहे थे, S1 डॉट सम इन ब्रैकेट S2। अब इस सम को हमने क्या किया, सीधा निकाल दिया और फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली S1 प्लस S2 कर रहे हैं। तो S1 प्लस S2 हो रहा है, मीन्स क्या हो रहा है, इसके अंदर में जो डेटा मेंबर्स होंगे उन दोनों के ऊपर आप एडिशन वाला ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो। ओके, so that's why this plus operator here is now the overloaded. Plus हम normally integers से कर रहे थे and now we have used this plus operator to perform the addition between the two objects. Okay, then this operator, ये जो operator है दूसरा और ये वाला, अब ये वाला हमारे लिए कौन सा operator था, this is left shift operator, this is left shift operator. लेकिन वही ऑपरेटर अभी हम कहाँ पे यूज कर रहे हैं, यहाँ पे यूज कर रहे हैं सी आउट के साथ। तो ये ऑपरेटर सी में क्या था, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर था। सी प्लस प्लस में भी ये लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर करके भी यूज कर सकते हैं इसको, नो प्रॉब्लम। लेकिन अभी हम इसी ऑपरेटर को पता था कि इसका मेन काम क्या है, इसका मेन काम क्या है, एडिशन बिटवीन द इंटीजर्स और फ्लोट्स। नाउ इन सी प्लस प्लस वी आर ओवरलोडिंग इट टू परफॉर्म द एडिशन बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स। इन द सेम वे इसका क्या था, ये बाइनरी अपना ये बिट ऑपरेटर था, ये क्या था, बिट ऑपरेटर था। ओके, लेफ्ट शिफ्ट कर रहे थे हम, बिट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे थे इसके ऊपर। ओके, सो नाउ द सेम ऑपरेटर वी आर यूजिंग हियर विद द कंसर्न ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसलिए वैल्यू को डिस्प्ले कराने के लिए या फिर वैल्यू को डिस्प्ले कराने के लिए हम यहाँ पे इसको क्या कर रहे थे, यूज करे। तो हियर नाउ दिस ऑपरेटर इज कॉल्ड एज अ एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, सॉरी हियर दिस इज कॉल्ड एज अ इंसर्शन ऑपरेटर। इसको क्या करते हैं, इसको क्या नाम से हमने किया, पुट ऑपरेटर बोलते हैं या फिर इंसर्शन ऑपरेटर, इसको हमने यहाँ पे पुकारा। तो ये ऑपरेटर भी क्या हो गया, यहाँ पे ओवरलोड हो गया, ये ऑपरेटर भी यहाँ पे क्या हो गया, ओवरलोड हो गया है। समझ में आ रहा है, ये ऑपरेटर हमने किस लिए यूज किया अब तक, लेफ्ट शिफ्ट करके यूज किया। लेकिन सी प्लस प्लस में अभी वही ऑपरेटर हम किस लिए यूज कर रहे हैं, to display the result, to display the value. Okay, now this operator here is called as a insertion operator or a put operator. तो देखो अभी नाम चेंज हो गया। तो मैंने जैसे मदर का एग्जांपल दिया था, घर में मदर है तो वो एज अ सपोज बच्चे उसके साथ है तो सी इज प्लेइंग द रोल ऑफ मदर। लेकिन वही मदर अगर उसके फ्रेंड्स के साथ है तो तब भी वो मदर का रोल प्ले करेंगी क्या, नो, सी इज गोइंग टू प्ले द रोल ऑफ अ फ्रेंड। ओके, सो इन द सेम वे ये तब तक लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर करके यूज हो रहा था। ऐसा नहीं कि सी प्लस प्लस में भी हम इसको लेफ्ट शिफ्ट ही यूज कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। लेकिन अभी मोस्ट ऑफ द टाइम हम उसको कैसे यूज कर रहे हैं, एज अ पुट ऑपरेटर उसको यूज कर रहे हैं। मीन्स अभी जो भी ऑपरेटर्स हमारे पास है, दैट ऑल ऑपरेटर्स कैन बी ओवरलोडेड, दैट ऑल ऑपरेटर्स कैन बी ओवरलोडेड। लेकिन अभी ये कंपाइलर को पता है कि भाई इंटीजर a प्लस बी किया तो उसका एडिशन करना है मेरे को, क्योंकि वो तो उसको कंपाइलर को हमने क्या किया, पहले से ही सिखा दिया, पहले से ही डिफाइन कर दिया। बट नाउ अब ये सैंपल पता था क्या उसको, कंपाइलर को, ये तो हमने बनाया, ये S1 S2 हमने बनाए। तो S1 प्लस S2 करते हैं तो इसके लिए क्या करना है, अगर मैंने S1 प्लस S2 किया तो क्या करना है, a प्लस x करना है, b प्लस y करना है, c प्लस z करना है। तो ये सब चीजें हमको क्या करना है, कंपाइलर को बताना है। ये सब चीजें हमको क्या करना है, कंपाइलर को वहां पे डिफाइन करना है, तभी जाके कंपाइलर क्या करेगा, इसको समझ पाएगा। अगर आपने ऐसे ही लिख दिया, उसको बताया नहीं कि एडिशन करना है या क्या करना है इसका, तो योर कंपाइलर नॉट एबल टू रिजॉल्व इट, भाई ये प्लस क्या है, S1 S2 क्या हो रहा करके। तो यू हैव टू डिफाइन एवरीथिंग। आई टोल्ड यू दैट कंप्यूटर इज नॉट बट इट इज अ स्मॉल चाइल्ड। ये क्या, एक छोटा बच्चा है, और ये सब चीजें हमको उसको डिफाइन करके देना है। जब हम उसको डिफाइन करेंगे, only that time it is able to execute the logic or programs whatever you are writing. So we are going to learn to the computer, ये जो हम definitions लिख रहे हैं, sorting कर रहे हैं, searching कर रहे हैं, तो इसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर को सिखा रहे हैं, और वो सीखने के बाद फिर उसको पता चलने के बाद फिर वो एग्जीक्यूट कर रहा है for ourselves. Okay, so here there are number of operators. Let's see the operators. So there are two types of operators, unary operator
and second are binary operator. So unary operator means there is only one operand. Only one operand means वहां पे जो भी आपका ऑपरेटर रहेगा उसके साथ सिर्फ एक ही वैल्यू रहेंगी. बट हियर देयर आर टू ऑपरेंड्स. देयर आर टू ऑपरेंड्स. नाउ हाउ इज इट? अब यूनरी ऑपरेटर कौन कौन से है? जो ऑपरेटर के साथ सिंगल वैल्यू यूज होती है. अब जैसे ये आई आपको पता है प्लस प्लस, तो दिस इज अ यूनरी ऑपरेटर. देन आई माइनस माइनस, ये यूनरी ऑपरेटर हो गया. अगर आपको साइन चेंज करना है, हम कभी कभी लिखते हैं ना नेगेटिव नंबर माइनस आई, तो ये हो गया आपका यूनरी ऑपरेटर. तो जो भी आपके ऐसे होंगे जिसके साथ हम सिंगल वैल्यू यूज करते हैं ऑपरेटर के साथ, दैट ऑपरेटर इज कॉल्ड एज अ यूनरी ऑपरेटर. जैसे हम कभी, वो तो नहीं है. और फिर बाइनरी ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं? ए प्लस बी करते हो आप, या फिर यहाँ पे देखो दो ऑपरेंड आ गए, ए माइनस बी करते हो. ये सब मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फिर आपका मॉड्यूलस, जो भी है, ऑल दीज आर नथिंग बट द बाइनरी ऑपरेटर्स. तो वेरी सिंपल डेफिनेशन ऑफ यूनरी ऑपरेटर, जिसमें ऑपरेटर के साथ सिर्फ सिंगल वैल्यू यूज होती है, दोज ऑपरेटर्स आर कॉल्ड एज अ यूनरी ऑपरेटर्स. और बाइनरी ऑपरेटर मीन्स जिस ऑपरेटर के साथ दो वैल्यू यूज होती है, लेफ्ट और राइट. अब वो कोई भी वैल्यू रहे, वो न्यूमेरिक रहे या कुछ भी रहे, सो दैट इज कॉल्ड एज अ, माना a प्लस टू, जैसे मैंने ये इसलिए बताना चाह रहा था, a माइनस टू लिख दिया, सो स्टिल दिस माइनस इज एक्टिंग एज अ बाइनरी ऑपरेटर, क्योंकि लेफ्ट साइड में भी नंबर है और राइट साइड में भी नंबर है. तो ये सब क्या है आपके? ये है आपके बाइनरी ऑपरेटर्स. तो आप पता कर सकते हो कि भाई आपके पास इतने सारे ऑपरेटर्स है, तो उसमें से कौन सा ऑपरेटर यूनरी और कौन सा ऑपरेटर बाइनरी. ओके, लेफ्ट शिफ्ट है, राइट शिफ्ट है. अब लेफ्ट शिफ्ट में भी हम कैसे लिखते हैं? ए लेफ्ट शिफ्ट टू, माना कितने बिट से लेफ्ट शिफ्ट करना है? 2 बिट से हमें क्या करना है? बिट वाइज ऑपरेटर है ये, तो इसको हम क्या करते हैं? लेफ्ट में 2 बिट से क्या करेंगे? उसको मूव करेंगे. सो दैट इज अ बिट वाइज ऑपरेटर. इन द सेम वे you will have a number of operators that you can find out. Okay, so this is unary operator and this is a binary operator. Okay, so now this all kind of operators can be overloaded. अबे हम प्लस प्लस को भी ओवरलोड कर सकते हैं, माइनस को भी, प्लस को, माइनस को, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, whatever you want, that all operators can be overloaded. But now there are two methods of overloading. एक तो हम एज अ नॉर्मल मेंबर फंक्शन. अब ये देखो यहाँ पे ये जो प्लस है ना, ये भले ही अपने को सिंबल दिख रहे हैं, ये प्लस सिंबल दिख रहा है, प्लस प्लस दिख रहा है, माइनस माइनस, ये मॉड्यूलस, ये सब हमको सिंबल दिख रहे हैं. बट फॉर ऑल दिस ऑपरेटर्स यू हैव टू राइट अ डेफिनेशन. क्योंकि प्लस कर रहे हैं मीन्स क्या कर रहे हैं, उसके लिए डेफिनेशन भी तो लिखना पड़ेगा ना, बिकॉज यू आर गोइंग टू परफॉर्म द एडिशन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स, और यू आर गोइंग टू परफॉर्म द एडिशन बिटवीन द टू स्ट्रिंग्स. हम दो स्ट्रिंग को भी ऐड कर सकते हैं. अभी माना S1 का कंटेंट आपका एक स्ट्रिंग होगा और S2 का कंटेंट आपका दूसरा स्ट्रिंग होगा, तो वो आर एबल टू परफॉर्म द एडिशन बिटवीन द टू स्ट्रिंग्स, दैट इज S1 प्लस S2. ओके, तो यूजिंग दिस आल्सो वी कैन परफॉर्म द एडिशन. ओके, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? प्लस के लिए डेफिनेशन लिखना पड़ेगा. तो उसके लिए डेफिनेशन, अब उसके लिए सिंटैक्स कैसा है डेफिनेशन के लिए? तो देखो यहाँ पे दो चीजें मैंने दी है कि यहाँ पे कैसे करते हैं कि हम जो भी डेफिनेशन लिखेंगे प्लस के लिए, तो ये डेफिनेशन लिखने के दो तरीके हैं. जैसे आपको पता था कि हमारे पास मेंबर फंक्शन कितने टाइप्स के हैं, एक नॉर्मल मेंबर फंक्शन, एक स्टैटिक मेंबर फंक्शन, एक फ्रेंड फंक्शन है. ओके, तो हमने जब लास्ट टाइम प्रोग्राम किया तो उसको नॉर्मल मेंबर फंक्शन के थ्रू भी इम्प्लीमेंट किया है और फ्रेंड फंक्शन के थ्रू भी इम्प्लीमेंट किया है. ओके, नॉर्मल मेंबर फंक्शन के थ्रू भी इम्प्लीमेंट हुए हैं हमारे प्रोग्राम्स और फ्रेंड फंक्शन के थ्रू भी इम्प्लीमेंट हुए हैं. अगर आपको टाइम, डिस्टेंस, कॉम्प्लेक्स, वो सब प्रोग्राम याद आ रहे होंगे तो उसमें हमने सेम प्रोग्राम को नॉर्मल से भी किया और फिर उसको फ्रेंड से भी किया है. नाउ यहाँ पे भी जो ये प्लस ऑपरेटर है, इसको हम एज अ नॉर्मल मेंबर फंक्शन भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या फिर फ्रेंड फंक्शन भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. तो देयर आर टू वेज. तो यहाँ पे देखो मैंने दिए हुए हैं, ये पहला सिंटैक्स है जिसको हम प्लस को ओवरलोड कर रहे हैं एज अ नॉर्मल मेंबर फंक्शन, एज अ नॉर्मल मेंबर फंक्शन. तो ये सिंटैक्स है, किस तरीके से उसकी डेफिनेशन लिखी जाती है. तो ये आपका रिटर्न टाइप, ये आपका क्लास नेम, फिर ये स्कोप रेजोल्यूशन. जो हमारा अब तक क्या रहता था, यहाँ पे सम करके रहता था, सपोज सम करके रहता था या ऐड करके रहता था. तो अभी हम तो कौन सा ऑपरेटर यूज कर रहे हैं?
ये प्लस ऑपरेटर यूज कर रहे हैं। हम कौन सा ऑपरेटर यूज कर रहे हैं? प्लस ऑपरेटर यूज कर रहे हैं। अभी जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे सम लिख रहे थे, तो वहां पे भी हम लोग क्या लिख रहे थे? सम लिख रहे थे। जैसे यही एग्जांपल है, ये देख लो, ये S1 S2 है सिर्फ, यहाँ पे ये सम और एक कॉम्प्लेक्स x आ गया, तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स करके लिख सकते हो आप लोग। ओके, या फिर यहाँ पे लिख के बता देता हूँ, कॉम्प्लेक्स C1 C2। तो फिर क्या लिख रहा था मैं? ये सब रीड वगैरह कर लिया मैंने, फिर मैं क्या लिखता था? C1 डॉट सम इन ब्रैकेट C2। ओके, तो अब तक हम लोग क्या कर रहे थे? ऐसे लिखते थे, फिर कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स स्कोप रेजोल्यूशन सम कॉम्प्लेक्स एक्स। कल का ही प्रोग्राम अगर आपको याद आ रहा होगा तो रिटर्न स्टार्ट दिस वाला कल के सेशन में हमने जो लिया था, तो वही यहाँ पे भी। ओके, तो ये वाला था। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि नाउ वी आर नॉट राइटिंग लाइक दिस वन, बट हाउ वी आर राइटिंग लाइक C1 प्लस C2। तो सम की जगह अब कौन आ गया? ऑपरेटर आ गया। वी हैव ओवरलोडेड द ऑपरेटर बिकॉज प्लस अब तक इंटीजर फ्लोट के एडिशन के लिए, लेकिन अभी प्लस किस लिए यूज कर रहे हैं? टू परफॉर्म द एडिशन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स। और ऑब्जेक्ट कोई एक सिंगल एंटिटी नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्ट के अंदर बहुत सारे डेटा मेंबर्स भी रहते हैं। वो भी ध्यान रखना है कि भाई ऐसे नहीं होना चाहिए कि कोई तो भी दूसरा डेटा मेंबर इधर ले लिया और दूसरे टाइप का डेटा मेंबर, माना इधर में ले लिया इंटीजर ए और इधर में ले लिया कैरेक्टर ए, और दोनों के बीच में एडिशन परफॉर्म तो हो ही नहीं सकती, या होगी भी तो रिजल्ट गलत आएगा। इसका सिंटैक्स इसके लिए मैंने लिख के बताया ऐसा वाला। लेकिन वही अगर आप प्लस के लिए लिखते हो तो हाउ इज द सिंटैक्स? द सिंटैक्स विल बी लाइक दिस वन, कॉम्प्लेक्स। फिर आपका अगर आपको डायरेक्ट करना है, ये आपका कॉल वाला जो डिक्लेयर करते हैं ना हम लोग, वो वाला है ऑपरेटर प्लस इन ब्रैकेट कॉम्प्लेक्स। ये क्या है हमारा? फंक्शन डिक्लेरेशन। ओके, ये क्या है हमारा? फंक्शन कॉल। और अभी हमारा फंक्शन डेफिनेशन कैसे रहेगा? कॉम्प्लेक्स, ये हो गया रिटर्न टाइप, फिर क्लास का नेम कॉम्प्लेक्स, स्कोप रिजोल्यूशन, और फिर जो सम लिख रहे थे तो सम की जगह भी कौन आएगा? ये कीवर्ड है यहाँ पे, कीवर्ड। और फिर कौन सा ऑपरेटर ओवरलोड कर रहे हैं? ओ। और उसके बाद फिर ये कॉम्प्लेक्स और जो भी रहेगा आपका C2, इसके बाद इसका डेफिनेशन। So how is the syntax? Syntax is return type, then आपका class name, then आपका scope resolution, then आपका कीवर्ड है ये ऑपरेटर, फिर आपका यहाँ पे अंदर लिखता हूं मैं ऑपरेटर टू बी ओवरलोडेड। यहाँ पे अंदर में लिखना है आपको, अंदर माना या ऐसे लिखना है, या तो ब्रैकेट्स में डाल दोगे वहां पे, ऐसे लिखना है सिंपली, प्लस करो, प्लस प्लस करो, माइनस माइनस, मॉड्यूलस, जो भी करना है, लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट जो भी करना है वो वाला। और यहाँ पे आपका ब्रैकेट में क्या आएगा? जो भी रहेगा आपका ब्रैकेट में। दिस इज द सिंटैक्स फॉर फंक्शन ऑपरेटर डेफिनेशन लिख दोगे मैं यहाँ पे। दिस इज फंक्शन कॉल हो गया, फंक्शन डेफिनेशन। ओके, तो हम लोग कौन से देख रहे थे? टू टाइप्स का ऑपरेटर हमारे पास, यूनरी बाइनरी। यूनरी में क्या है हमारे पास? ऐसे ऑपरेटर जिसके साथ एक ही ऑपरेंड यूज होता है, एक ही वैल्यू यूज होती है, दैट इज कॉल्ड, दैट आर कॉल्ड एज यूनरी ऑपरेटर। बाइनरी में ऐसे ऑपरेटर ऑपरेंड्स यूज होते हैं, लेफ्ट में भी वैल्यू रहती है और राइट में भी वैल्यू रहती है, दोज आर कॉल्ड एज बाइनरी ऑपरेटर्स। फिर हमने ये देखा कि अगर हमारे पास क्लास कॉम्प्लेक्स है, इसके दो ऑब्जेक्ट्स है C1 C2, तो अब तक हम लोग कैसे लिख रहे थे? C1 डॉट सम इन ब्रैकेट C2। लेकिन अभी हम ऑपरेटर ओवरलोड कर रहे हैं, तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग मींस you can use the same operator to perform the addition, plus होगा, minus होगा, so you are going to overload that operator. So now instead of using this function sum, how you can write? You can write like C1 plus C2, C1 plus C2.
ये हो गया आपका फंक्शन कॉल। फंक्शन कॉल होगा तो फंक्शन डिक्लेरेशन पे लिखना पड़ेगा। तो फंक्शन डिक्लेरेशन कैसे लिखते हैं, रिटर्न टाइप, फिर आपका ऑपरेटर प्लस, क्योंकि यहाँ पे पहले कैसे आता था, कॉम्प्लेक्स आता था, सम आता था और इन ब्रैकेट कॉम्प्लेक्स आता था, पहले ऐसे आता था कॉम्प्लेक्स ऑपरेटर प्लस सम और अंदर में कॉम्प्लेक्स। लेकिन अभी क्या हो गया, सम की जगह आप क्या कर यूज, प्लस यूज कर रहे हो, तो दैट्स ऑपरेटर और ये प्लस कॉम्प्लेक्स। ये हो गया आपका फंक्शन डिक्लेरेशन, तो आपका फंक्शन डिक्लेरेशन। और ये सिंटैक्स फॉर फंक्शन डिक्लेरेशन, रिटर्न टाइप, फिर आपका क्लास नेम, स्कोप रिजोल्यूशन, ऑपरेटर प्लस और इन ब्रैकेट कॉम्प्लेक्स सी। ओके, so this is function definition. Now as we are discussing about कि like we can implement, अब ये हमने देखा था कि sum को हम, अब ये जो sum function है यहाँ पे कैसा है, नॉर्मल मेंबर फंक्शन है। ये sum कैसा है, यहाँ पे नॉर्मल मेंबर फंक्शन है। आपको मैं अभी पढ़ा रहा हूँ लेकिन ये वीडियोस देखना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मैं अगर आप ये नोट्स को पढ़ोगे तो आपको समझ में कितना आएगा आई डोंट नो, लेकिन ये वीडियो देखोगे पढ़ते पढ़ते तब आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो सकती है। लेकिन आप लोग वीडियो देखते हो कि नहीं, दैट आई डोंट नो। ये सम C1 C2, अब दोनों इसमें क्या डिफरेंस है, दिस इज अ नॉर्मल मेंबर फंक्शन बिकॉज ऑब्जेक्ट इज एक्सेसिंग इट, but no object is accessing this function, so that's why this is your friend function. This is your friend function. So overloading the operator can be done using the two methods. You can overload this operator as a normal member function, or you can also overload this operator as a friend function. You can also overload this operator as a friend function. We have C1 plus C2, ये फंक्शन कॉल हो रहा है, लेकिन ये नॉर्मल मेंबर फंक्शन के थ्रू जब आप करते हो तब अलग जाता है, और जब फ्रेंड फंक्शन के थ्रू करते हो तब अलग जाता है। तो क्या अलग जाता है, दैट वी विल सी नाउ, बट आई थिंक this is clear to you that whatever the operators are there, that could be plus plus, that could be minus minus, or plus minus, modulus, left shift, whatever the operators are there, that all operators can be overloaded. That could be unary or that could be binary, that could be overloaded using the two methods, as a normal member function or as a friend function, because these operators भले ये दिखने के लिए ऑपरेटर दिख रहे हैं, बट दे आर गोइंग टू रिप्रेजेंट द फंक्शन डेफिनेशंस। और जब भी फंक्शन डेफिनेशन आता है तो एक तो नॉर्मल रहेगा या फिर एज अ फ्रेंड रहेगा। ओके, so that's why there are two methods. Give the example to define overloading plus as a binary, वो तो पता है प्लस बाइनरी है, नॉर्मल मेंबर फंक्शन। तो ये देखो कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स स्कोप रिजोल्यूशन सम कॉम्प्लेक्स एक्स, तो ये तो आप लोगों को पता है। वही अगर इसको हम क्या करेंगे, फ्रेंड फंक्शन की तरह इंप्लीमेंट करते, तो देखो अब ये जो था, ये तो आपको पता है कि फ्रेंड रहता है तो ये कॉम्प्लेक्स कोपोजिशन निकल जाता है, तो ये निकल गया। ये तो आपका रिटर्न टाइप है क्योंकि ऑब्जेक्ट रिटर्न हो रहा है, ये आपका रिटर्न टाइप है क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट रिटर्न हो रहा है, ये रिटर्न टाइप हो गया। अब ये फ्रेंड फंक्शन की तरह इंप्लीमेंट हो रहा है, इसलिए ये निकल गया कॉम्प्लेक्स कोपोजिशन, डायरेक्टली ऑपरेटर प्लस, और ये आपका ऐसे। ओके, so I think these things are clear to you. Very first, what is the definition of a polymorphism? So polymorphism means multiple methods. एक ही इंटरफेस है हमारे पास, एक ही चीज है, लेकिन इसको अलग अलग तरीके से क्या कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं। तो वेरी सिंपल एग्जांपल, एरिया है, वॉल्यूम है, ड्रॉ है, whatever you want. For example, you can mention, suppose polymorphism. So you can provide the definition, and along with the definition, you can give the explanation. After that, we have seen there are two types of polymorphism: combined type polymorphism, runtime polymorphism. In combined type, there are two applications: overloading, operator loading, and you are having application as a virtual function. Now, this combined time is called as the early binding or a static binding, जो कि पहले ही पता चल रहा है कि भाई कौन से फंक्शन के साथ लिंक करना है, फंक्शन के साथ बाइंड करना है। प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया, अभी तो ब्लैक स्क्रीन है, प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है। So during that, the compiler has to link with that particular function. He has to make a link with that particular function, or he has to bind that particular function. So that's why late हो रहा है, dynamic हो रहा है, during runtime हो रहा है, so that's the runtime. तो runtime polymorphism को क्या बोलते हैं, late binding, dynamic binding. कंपाइल टाइम polymorphism का दूसरा नाम क्या है, अर्ली बाइंडिंग और स्टैटिक बाइंडिंग, ये इसके दूसरे नाम है। ओके, फिर मैंने बताया ऑपरेटर्स कौन कौन से, यूनरी, बाइनरी,
और ये दोनों भी ऑपरेटर्स कर सकते हैं। अभी जो भी ऑपरेटर्स है वो सब हम ओवरलोड कर सकते हैं, सिर्फ कुछ ऑपरेटर्स है जिनको हम ओवरलोड नहीं कर सकते। ओके, वो कौन से है वो मैं बताऊंगा। फिर मैंने आपको एक बताया कि जैसे हम क्या करते थे और फंक्शन इंप्लीमेंट करके पे जाते we can access without object, फंक्शन डेफिनेशन पे जाता था, उसका काम करता था, वापस आता था। तो अब तक हम ये फंक्शन का नाम लिखते थे, अभी हमारे पास दैट यूज टू परफॉर्म द operation over the objects. Okay, to perform the operations over the user defined data types, we can say. तो जो भी आपके user defined data so you can check from here operators, so unary operator, binary operator as we are talking. So the operators which are having a single operand, they are called as a unary. Operators which are having two operand, that is called as a binary. तो ये सिंटैक्स आप लोगों ने देख लिया, अभी आप लोगों को समझ में आ गया है कि सम की जगह हमें क्या करना है, सिर्फ ऑपरेटर और ये प्लस यूज करना है। ऑपरेटर इज अ फिक्स कीवर्ड, व्हेनेवर यू आर गोइंग टू ओवरलोड एनी ऑपरेटर, दिस कीवर्ड इज अ फिक्स। ये कीवर्ड है ऑपरेटर, ये ध्यान में रखो कि ऑपरेटर क्या है। अभी C++ में कीवर्ड है, सी में ये कीवर्ड नहीं था, C++ में एक एडिशनल कीवर्ड है ऑपरेटर, और ये प्लस तो आपको पता ही है अभी। So we are talking that like there are two methods to overload the operators. First is using a normal, you can implement, you can overload that operator as a normal member function, or you can overload that operator as a friend function. Okay, so that we will see how we can do it. So यहाँ पे आप अगर एक चीज देख रहे होंगे कि ये जो प्लस ऑपरेटर है, अब ये बाइनरी ऑपरेटर है क्योंकि लेफ्ट साइड में भी अवेलेबल है, राइट साइड में भी अवेलेबल है। तो ये थोड़ा ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, बिकॉज दिस इज द रूल व्हाइल ओवरलोडिंग द ऑपरेटर्स। ओके, तो आप यहाँ पे देखा होगा कि जब हम प्लस को एज अ बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोड कर रहे थे एज अ नॉर्मल मेंबर फंक्शन, वेरी क्लियर, प्लस बाइनरी ऑपरेटर को ओवरलोड कर रहे हैं एज अ नॉर्मल मेंबर फंक्शन, तो इसमें एक ही आर्गुमेंट पास हो रहा था, माना ये इस तरीके से C1.sum इन ब्रैकेट C2 नॉर्मल मेंबर फंक्शन एक ही हो रहा था। प्लस को एज अ नॉर्मल मेंबर फंक्शन इंप्लीमेंट कर रहे तो एक ही आर्गुमेंट पास हो रहा था, लेकिन वही प्लस को, जो प्लस है वो बाइनरी ऑपरेटर है, उसको हम ओवरलोड कर रहे थे एज अ फ्रेंड फंक्शन, तो कितने आर्गुमेंट पास हो रहे, दो आर्गुमेंट पास हो रहे। हमेशा ध्यान में रखो, जब यूनरी ऑपरेटर, अब ये पहले बाइनरी का देख लो, बाइनरी ऑपरेटर एज अ नॉर्मल मेंबर फंक्शन, तो कितने ऑब्जेक्ट आपके पास होंगे, ओनली वन। समझ में आया? बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोड हो रहा है एज अ नॉर्मल मेंबर फंक्शन, हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स यू हैव टू पास और हाउ मेनी पैरामीटर्स शुड बी देयर, आर्गुमेंट शुड बी देयर, ओनली वन। वही आप बाइनरी ऑपरेटर को ओवरलोड कर रहे हो एज अ फ्रेंड फंक्शन, वही आप बाइनरी ऑपरेटर को ओवरलोड कर रहे हो एज अ फ्रेंड फंक्शन, तो आपके कितने आर्गुमेंट पास हो रहे, दो आर्गुमेंट पास हो रहे। तो ध्यान में आया, बाइनरी नॉर्मल मेंबर फंक्शन एक आर्गुमेंट, बाइनरी फ्रेंड फंक्शन दो आर्गुमेंट। ओके, वही फिर अभी बाइनरी को छोड़ते यूनरी पे आते हैं। यूनरी ऑपरेटर नॉर्मल मेंबर फंक्शन जीरो आर्गुमेंट। क्या बोला मैंने? यूनरी ऑपरेटर नॉर्मल मेंबर फंक्शन जीरो आर्गुमेंट। यूनरी ऑपरेटर जो भी यूनरी है, प्लस प्लस माइनस माइनस जो भी रहेगा आपके यूनरी वाले, यूनरी ऑपरेटर फ्रेंड फंक्शन वन आर्गुमेंट। ओके, आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। तो ये कंपाइल टाइम का यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि इन कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म द कंपाइलर इज एबल टू सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट फंक्शन फॉर अ पर्टिकुलर कॉल एट कंपाइल टाइम। इट मीन्स दैट एन ऑब्जेक्ट इज बाउंड टू इट्स फंक्शन कॉल एट कंपाइल टाइम। जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट बाउंड हो रहा है किसको, फंक्शन कॉल को एट कंपाइल टाइम, दैट इज लिंकिंग ऑफ फंक्शन कॉल टू इट्स डेफिनेशन एट अ कंपाइल टाइम। माना ऑब्जेक्ट ने फंक्शन को कॉल किया और वो किसके साथ लिंक हो रहा है, डेफिनेशन के साथ ड्यूरिंग कंपाइल टाइम। It is also known as a early binding because at the time of compilation only prototype is clicked, which cannot be changed and remain static। क्या होता है, वो स्टैटिक रहता है, उसको चेंज नहीं कर सकते। माना आपका फंक्शन कॉल हुआ और फंक्शन कॉल के थ्रू अपने फंक्शन डेफिनेशन को लिंक कर दिया तो फिक्स हो गया, दैट कैन नॉट बी चेंज। सो दैट्स व्हाई इसको अर्ली बाइंडिंग भी बोलते हैं या फिर स्टैटिक बाइंडिंग भी बोलते हैं। तो फंक्शन कॉल्स आर फास्टर एज ऑल द इन्फॉर्मेशन इज ऑलरेडी अवेलेबल। तो यहाँ पे क्या हो गया, पहले कंपाइलर को पता चल गया, तो यहाँ पे क्या होगा, एग्जीक्यूशन थोड़ा
फास्टर होगा. दिस कैन बी अचीव्ड बाय टू वेज. ये मैंने एप्लीकेशन बता दिया आपको. और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में देखते हैं. इट मींस दैट ऐसे चाहिए था. It specifies that appropriate function is done at runtime, that is linking of function call to its definition at a runtime. क्या हो रहा है यहाँ पे? वहाँ पे फंक्शन कॉल फंक्शन डेफिनेशन के साथ लिंक हो रहा था यहाँ पे कंपाइल टाइम पे. और यहाँ पे क्या हो रहा है? फंक्शन कॉल लिंक हो रहा है डेफिनेशन को ड्यूरिंग रन टाइम. दिस विल नीड द यूज ऑफ. हाँ, यहाँ पे क्या है, थोड़ा अलग कंसेप्ट है, अभी आपको समझ में नहीं आएगा. यहाँ पे हमको पॉइंटर यूज करना पड़ता है. This will need the use of a single pointer variable to refer to the objects of the different classes. क्योंकि यहाँ पे ज्यादा क्लासेस रहते हैं और हमको वहाँ पे पॉइंटर क्रिएट करके बताना पड़ता है कि भाई अब ये पॉइंटर बेस क्लास को ये हो रहा है या फिर डिराइव्ड क्लास को हो रहा है. So it is also referred as a dynamic linking or late binding. Hence we use the pointer to base class refer to all the derived objects. The compiler ignores the content of the pointer and choose the member function that matches the type of the pointer for this virtual functionality. वो अभी हमें फोकस नहीं करना है. So let's see what are the differences between the early binding and late binding. So early binding, it means that object is bound to its function call at compile time. और यहाँ पे it means the selection of appropriate. वो selection था शायद. It means that a selection. Selection of appropriate function is done at run time. यहाँ पे compile time में सिलेक्शन हो रहा है, यहाँ पे रन टाइम पे सिलेक्शन हो रहा है. ओके, फंक्शंस कैन बी कॉल्ड आर वेल नोन बिफोर. ये तो पता है पहले ही. यहाँ पे क्या होता है, ये कौन सा फंक्शन को कॉल करना है, कौन से फंक्शन को कॉल करना है, आर अननोन अंटिल एप्रोप्रिएट सिलेक्शन इज मेड. ओके, इट डज नॉट रिक्वायर यूज ऑफ पॉइंटर्स टू ऑब्जेक्ट. यहाँ पे अभी आपने देखा होगा कि कंपाइल टाइम जो हमने फंक्शन ओवरलोडिंग किया या ऑपरेटर ओवरलोडिंग किया है तो उसमें हमने पॉइंटर का यूज नहीं करते. लेकिन यहाँ पे तो बिना पॉइंटर के कर ही नहीं सकते हैं. यहाँ पे फंक्शन कॉल फास्टर है, यहाँ पे फंक्शन कॉल एग्जीक्यूशन स्लो है. क्योंकि यहाँ पे कंपाइलेशन में ही पता चल रहा है, यहाँ पे ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन पता चल रहा है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ स्टैटिक बाइंडिंग. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ लेट बाइंडिंग. और इसके एग्जाम्पल एप्लीकेशन क्या है, फंक्शन ऑपरेटर, इसका वर्चुअल फंक्शन. ओके, तो लेट मी शो यू द टेबल दैट आई वांट टू शो यू. तो यहाँ पे जो मैं बात कर रहा था, यूनरी ऑपरेटर्स. ठीक है, अगर यूनरी ऑपरेटर को एज अ नॉर्मल मेंबर फंक्शन ऑफ इंप्लीमेंट कर रहे हो तो कितने आर्गुमेंट पास होंगे? 0 आर्गुमेंट, जो भी मैंने बताया. या फिर बाइनरी का आते, पहले बाइनरी ध्यान में रख बैठाऊंगा. तो बाइनरी ऑपरेटर को एज अ मेंबर फंक्शन इंप्लीमेंट करे तो एक ही कॉम्प्लेक्स का पास हो रहा था. वही आप बाइनरी ऑपरेटर को एज अ फ्रेंड फंक्शन इंप्लीमेंट करे तो कितने पास हो रहे थे? 2 पास हो रहे थे. वही अगर आप यूनरी ऑपरेटर को करते हो, ये तो पता है हमको कि बाइनरी ऑपरेटर में 2 रहते हैं तो मेंबर फंक्शन है तो एक ही पास होगा. बाइनरी ऑपरेटर में 2 है तो फ्रेंड, ये इतनी बात ध्यान में रखो कि जो भी ऑपरेटर है फ्रेंड फंक्शन में उसके जितने भी ऑपरेंड्स है वो सब पास होंगे. क्योंकि यूनरी ऑपरेटर में एक ही ऑपरेंड होता है तो फ्रेंड में 1 होगा. बाइनरी ऑपरेटर में 2 होते हैं तो फ्रेंड फंक्शन में 2 पास होंगे. ओके, और ये मेंबर फंक्शन में क्या कर दो, 1 माइनस कर दो. तो यूनरी ऑपरेटर में 1 ऑपरेंड रहता है तो मेंबर फंक्शन में 0 होगा. बाइनरी ऑपरेटर में 1 माइनस करेंगे तो 1 हो जाएगा. 2 में से 1. तो अभी आप लोग देखो आप कैसे ध्यान में रखते हो. ठीक है, तो ये सिंपल यूनरी ऑपरेटर मेंबर फंक्शन 0, यूनरी ऑपरेटर फ्रेंड फंक्शन 1. ओके, बाइनरी ऑपरेटर मेंबर फंक्शन 1, बाइनरी ऑपरेटर फ्रेंड फंक्शन 2. ओके, so let's see now what are the rules to overload the operators. There is always question in the examination, compulsory question in the examination for the 4 marks. Describe any or explain any 8 rules to overload the operators. Okay, so what are those rules? Let's see one by one. तो ये तो पता है कि भाई जो भी ऑपरेटर है हम कोई हमारा नया ऑपरेटर तैयार नहीं कर सकते. Whatever the operators are there, only that can be overloaded. Only built-in operators can be overloaded. New operators cannot be created. हम कोई हमारा खुद का कोई नया ऑपरेटर नहीं बना सकते कि जैसे आपने क्या कर दिया, प्लस और क्रॉस दोनों का मिक्स कर दिया और ये मेरा नया ऑपरेटर है करके. ऐसा कोई ऑपरेटर हम नहीं बना सकते. ओके, तो जो बिल्ट-इन ऑपरेटर्स है ओनली दैट कैन बी ओवरलोडेड. एरिटी ऑफ द ऑपरेटर्स कैन नॉट बी चेंज. एरिटी मीन्स जो मीनिंग है ऑपरेटर का वो हम चेंज नहीं कर सकते. माना प्लस ऑपरेटर है और प्लस दिखा दिया ऊपर और अंदर में क्या काम कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं. माना प्लस ऑपरेटर का काम है एडिशन करना और आप यहाँ पे प्लस को किस लिए यूज कर रहे हो, माइनस के लिए यूज कर रहे हो. तो दैट मीनिंग ऑफ द ऑपरेटर कैन नॉट बी चेंज. ओके,
प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी ऑफ द ऑपरेटर्स कैन नॉट बी चेंज। जो प्रेसिडेंस रहेगा, एसोसिएटिविटी रहेगी ऑपरेटर्स को सेम रहेगी जो नॉर्मली रहती है। ओवरलोडेड ऑपरेटर्स कैन नॉट हैव डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स एक्सेप्ट द फंक्शन कॉल ऑपरेटर व्हिच कैन हैव डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स। ओके, ओवरलोडेड ऑपरेटर्स में क्या रहते हैं, वहां पे डिफॉल्ट आर्गुमेंट नहीं कर सकते एक्सेप्ट द फंक्शन कॉल ऑपरेटर। अब ये फंक्शन कॉल अलग ऑपरेटर है, ये फंक्शन कॉल अलग ऑपरेटर है व्हिच कैन हैव अ डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स। लेकिन जब हम ऑपरेटर को ओवरलोड करें तो उसमें हम डिफॉल्ट आर्गुमेंट नहीं पास कर सकते। ऑपरेटर्स cannot be overloaded for built-in types. Operators cannot be overloaded for built-in types only. At least one operand must be used defined type. ये चेक करना पड़ेगा रूल क्या दिया है तो इसमें। Operators cannot be overloaded for operators can be overloaded for built-in types only. At least one operand must be used defined type. ये क्या नंबर शायद है। Operators can be overloaded for built-in types only. At least one operand must be used of a defined type. यहाँ पे क्या करना है उसका कि एक को भी ऑपरेंड माना, जैसे मैंने बाइनरी ऑपरेटर में बताया था, पहले a प्लस बी लिखा था और फिर a माइनस 2 लिखा था। तो वहां पे उसका कहना है कि भाई एक तो भी आपका क्या रहना चाहिए, वहां पे बिल्ट इन टाइप वाला रहना चाहिए। माना कोई तो भी एक आपका ऑपरेंड ऐसा इंटीजर वाला बोलो या फिर ऐसा वाला बोलो तो वो वहां पे रहना चाहिए। अभी हम ऑब्जेक्ट के बीच में भी एडिशन परफॉर्म करते हैं तो उसके अंदर में डेटा मेंबर्स क्या है, इंटीजर्स वहां पे है ही। ओके, देन असाइनमेंट। अब देखो कौन से ऑपरेटर हम नहीं ओवरलोड कर सकते। असाइनमेंट ऑपरेटर वैल्यू असाइन करते हैं, सबसेट ऑपरेटर या एरे वाला जो है, ये फंक्शन कॉल ऑपरेटर जो यहाँ पे बात कर रहे थे, ये फंक्शन कॉल ऑपरेटर है। फिर ये मेंबर सिलेक्शन ऑपरेटर है, एरो ऑपरेटर। So these operators must be defined as a member of a function. इसने कुछ अलग भी दिया यहाँ पे शायद। ये रूल्स है ना, आप लोग बालगुरु स्वामी की बुक में से देख लेना, वहां पे आपको आठों रूल्स मिल जाएंगे। तो ये जो ऑपरेटर्स है ना, these operators cannot be overloaded है ये। ओके, इसका ऐसा कहना है कि असाइनमेंट, सबस्क्रिप्ट, फंक्शन कॉल एंड मेंबर सिलेक्शन ऑपरेटर्स must be defined as a member function. Means they cannot be overloaded as friend function. As they cannot be overloaded as a friend function. माना ये जो चार ऑपरेटर है आपका इक्वल टू सबस्क्रिप्ट, फंक्शन कॉल एंड एरो ऑपरेटर, तो ये आपके चारों जो ऑपरेटर है इनको हम एज अ फ्रेंड फंक्शन इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, एज अ मेंबर फंक्शन इंप्लीमेंट कर सकते हैं। आपको मैंने दो ऊपर में बताए थे कि ऑपरेटर्स दैट कैन बी ओवरलोडेड एज अ मेंबर फंक्शन एंड ऑपरेटर्स दैट कैन बी ओवरलोडेड एज अ फ्रेंड फंक्शन। तो अगर ऑपरेटर को अगर आप अभी ऐसा भी है कि कुछ ऑपरेटर ऐसे है कि जिनको हम एज अ फ्रेंड फंक्शन इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। तो ये जो इक्वल टू है, ये जो है हमारा स्क्वायर ब्रैकेट, ये जो फंक्शन कॉल है, ये जो एरो ऑपरेटर है, तो इनको हम एज अ फ्रेंड फंक्शन इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। ओके, तो हम देखते हैं ऊपर में कि कौन कौन से ऑपरेटर्स ओवरलोड कर सकते हैं और कौन कौन से नहीं कर सकते। तो ये देखो सबसे पहले एज अ एनलिस्ट ऑपरेटर दैट कैनॉट बी ओवरलोडेड एज अ फ्रेंड फंक्शन। तो ये अभी जो मैंने बताया असाइनमेंट ऑपरेटर, फिर आपका फंक्शन कॉल ऑपरेटर, ये सब्सक्रिप्टिंग ऑपरेटर और एक क्लास मेंबर एक्सेस ऑपरेटर। ये आपको पता है ना, क्लास मेंबर एक्सेस लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट का पॉइंटर और राइट साइड में डेटा मेंबर या मेंबर फंक्शन। तो ये वाला ऑपरेटर को हम ओवरलोड नहीं कर सकते, ये वाले को भी नहीं कर सकते, ये वाले को भी एज अ फ्रेंड फंक्शन इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। ओके, एज अ मेंबर फंक्शन इंप्लीमेंट कर सकते हैं। माना जैसे हम मेंबर फंक्शन में क्या कर रहे थे, अगर आपका बाइनरी ऑपरेटर होगा, ये भी बाइनरी, ये भी बाइनरी, ये भी बाइनरी सपोज, तो ये क्या कर सकते हैं, मेंबर फंक्शन में इंप्लीमेंट कर सकते हैं और वहां पे आपको एक ही आर्गुमेंट पास करना पड़ेगा। लेकिन फ्रेंड फंक्शन में हम इसको इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। माना जो फ्रेंड फंक्शन का डेफिनेशन था यहाँ पे इस तरीके से, इस तरीके से हम इंप्लीमेंट इसको नहीं कर सकते, इसको हम इस तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। मीन्स वी कैन ओवरलोड दैट ऑपरेटर एज अ मेंबर फंक्शन, वी कैन नॉट ओवरलोड दैट ऑपरेटर एज अ फ्रेंड फंक्शन की तरह इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। एंड देयर विल बी ए क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन, आपको चार ऑपरेटर कुछ भी दिया हुआ रहेगा,
और वहां पे पूछा जाएगा कि स्टेट अमंग द फॉलोइंग विच ऑपरेटर्स कैन नॉट बी ओवरलोडेड एज अ फ्रेंड फंक्शन। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि एज अ फ्रेंड फंक्शन कौन से ऑपरेटर ओवरलोड नहीं हो सकते, और इसके ऊपर तो 2 क्वेश्चन आते ही है। ओके, इसके ऊपर तो 2 क्वेश्चन आते ही है कि भाई कौन से ऑपरेटर्स एज अ फ्रेंड फंक्शन ओवरलोड नहीं हो सकते हैं और कौन से फंक्शन एज अ मेंबर फंक्शन ओवरलोड नहीं हो सकते। तो ये है ऑपरेटर्स दैट कैन नॉट बी ओवरलोडेड। अब ये जो ऑपरेटर्स है ये बिल्कुल ही ओवरलोड नहीं हो सकते। कौन कौन से? डॉट, ये मेंबर एक्सेस, ये मेंबर एक्सेस अलग है, ये डॉट है, ये एरो है। ओके, ये भी मेंबर एक्सेस है, ये भी मेंबर एक्सेस है। ठीक है, तो ये डॉट, टर्नरी ऑपरेटर, अपना कंडीशनल ऑपरेटर, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, पॉइंटर टू मेंबर ऑपरेटर। ये पता है कि ये राइट साइड में स्टार है, मींस राइट साइड में क्या रहेगा? डेटा मेंबर का या फिर आपके फंक्शन का पॉइंटर रहेगा। तो ये डॉट स्टार भी हम नहीं कर सकते, साइज ऑफ भी नहीं कर सकते, और ये टाइप आईडी करके है ये भी हम नहीं कर सकते ओवरलोड। मैंने बोला था आपको कि जितने ऑपरेटर्स है उसमें से कुछ ऑपरेटर हम ओवरलोड नहीं कर सकते, लेकिन ये जो ऑपरेटर है इनको तो हम बिल्कुल ही ओवरलोड नहीं कर सकते। डॉट, डॉट स्टार, फिर आपका साइज ऑफ, स्कोप रिजोल्यूशन, कंडीशनल ऑपरेटर, these operators cannot be overloaded, but these 4 can be overloaded as a member function, but they cannot be overloaded as a friend function। समझ में आ रहा है? इनको हम बिल्कुल ही ओवरलोड नहीं कर सकते हैं, माना इनका मीनिंग, या फिर इनको हम 2 ऑब्जेक्ट के लिए ऐसे ओवरलोडिंग के लिए यूज नहीं कर सकते। माना जैसे इसका स्कोप रिजोल्यूशन, इसका मीनिंग क्या है? इट इज गोइंग टू टेल यू द स्कोप that whatever the data member or member function is there, that comes under which class। तो यही ऑपरेटर हम दूसरे कहीं पे दूसरे पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते। ये डॉट स्टार, साइज ऑफ, ये हम कंडीशनल, ये हम दूसरे पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते। जैसे प्लस है, तो प्लस को तो हम यूज कर रहे थे, कहाँ पे यूज कर रहे थे? टू परफॉर्म द एडिशन बिटवीन द 2 स्ट्रिंग्स, टू परफॉर्म द एडिशन बिटवीन द 2 ऑब्जेक्ट्स। जैसे असाइनमेंट भी है, अब असाइनमेंट ऑपरेटर भी हम यूज कर रहे हैं। a इक्वल टू 2 हो गया, या फिर s1, जैसे आपका ऑब्जेक्ट है, सपोज आपका ऑब्जेक्ट है s1, तो ये s1 में वैल्यू 2 असाइन करो। माना क्या करो? s1 के आपके जितने भी डेटा मेंबर्स होंगे a b c, तो हर एक की वैल्यू क्या कर दो आप? 2 2 वहां पे असाइन कर दो। So this is assignment operator, but this assignment operator can be overloaded as a member function only. This operator cannot be overloaded as a friend function. So I think this is clear to you, which operators can be overloaded as a normal member function, which operators can be overloaded as a friend function। अब ये 4 as a friend function overload नहीं हो सकते, ये 6 as a normal member function भी overload नहीं हो सकते हैं, और as a friend function बिल्कुल ही overload नहीं होती है। ये जो है इतने 6, एक्चुअली इसमें के 4 ही मेन है। ये स्कोप रिजोल्यूशन, ये स्कोप रिजोल्यूशन, ये कंडीशनल, और ये डॉट स्टार, और ये साइज ऑफ। ये डॉट और डॉट स्टार क्या हो जाते हैं? एक ही हो जाते हैं। यहाँ पे डॉट और डॉट स्टार एक ही हो जाते हैं, क्योंकि वो मेंबर एक्सेस ऑपरेटर है। और ये है 3 मेन, कंडीशनल, स्कोप रिजोल्यूशन और ये साइज ऑफ। ये मेन 4 ही है, जिसको 6 में बांट दिया। और ये टाइप आईडी, तो ये टाइप आईडी भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, क्योंकि बालगुरु स्वामी में सीधे 4 ही दिए हुए हैं। डॉट डॉट स्टार एक में दिया, फिर आपका कंडीशनल, स्कोप रिजोल्यूशन और ए साइज ऑफ। आपके ऐसे 4 हो जाते। दैट ऑपरेटर्स कैन नॉट बी ओवरलोडेड, एज अ मेंबर फंक्शन भी नहीं होते, एज अ फ्रेंड फंक्शन भी नहीं होते। लेकिन ये जो 4 है, ये सिर्फ एज अ फ्रेंड फंक्शन इंप्लीमेंट नहीं होते, लेकिन एज अ मेंबर फंक्शन हम इनको ओवरलोड कर सकते हैं। तो हमें इतने ज्यादा ऑपरेटर्स के ऊपर फोकस भी नहीं करना है, हमें सिर्फ नॉलेज के लिए 3-4 ऑपरेटर हम ओवरलोड करके देखेंगे, इतना डिटेल में हमको नहीं जाना है। ओके ओके, तो दिस इज, तो ये रूल्स भी है। तो यहाँ पे अब ये रूल्स भी हम थोड़े चेंज कर सकते हैं कि भाई चलो ये पहला रूल ठीक है, ये दूसरा भी ठीक है, ये तीसरा भी ठीक है। अगर आपको डिफिकल्ट जा रहा है तो आप इसमें क्या कर सकते हो? ये 4 जो रूल थे हमारे, ये वाले, ये वहां पे लिख सकते हो। लाइक यूनरी ऑपरेटर, when the unary operator is overloaded as a member function, so only no argument will get passed to the function definition। ये हो गया आपका 5वां रूल। फिर आपका when unary operator is overloaded as a friend function, so one argument can be passed to the function definition। Okay, when binary operator is overloaded as a member function, one argument can be passed to the function definition। when binary operator is overloaded as a friend function, 2 arguments can be passed to the function definition। तो ये आपके 4 रूल हो गए यहाँ से।
और आपके ये 4 रूल हो गए यहाँ से कितने। ओके, तो ये 4 और 4 8 आपको ऐसे मिल जाते हैं। Some operators like assignment, address and comma are by default overloaded. ओके, तो आप, मैंने बोला आपको ये बालगुरु स्वामी से इसका आंसर थोड़ा चेक करो। एक्चुअली एक इसने लिखा था, इसने यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सेप्ट द operators specified in point 6 all other operators can either member function और नॉन मेंबर फंक्शन, माना एज ए मेंबर फंक्शन भी इंप्लीमेंट कर सकते हो और फ्रेंड फंक्शन भी उसको इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप वो भी एक रूल दे सकते हो, और आपको बढ़ाना होगा तो डॉट डॉट स्टार, फिर आपका कौन सा था, स्कोप रिजोल्यूशन, कंडीशनल ऑपरेटर, साइज ऑफ ऑपरेटर्स, दिस ऑपरेटर्स कैन नॉट बी ओवरलोडेड। तो ऐसे आप 10-12 रूल यहाँ पे तैयार करके रख सकते हो। ओके, so this is all about the basics regarding the polymorphism. Suppose you want to revise it, so we can do it. So polymorphism means one interface, multiple methods. Polymorphism means one interface, multiple methods. Okay, two types: compile time polymorphism, runtime polymorphism. This is called as the early or static binding. This is called as the late or dynamic binding. Applications, function overloading, operator overloading. इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है कि आपको 4 दिए हुए रहेंगे ऐसे कुछ, तो भी फंक्शन ओवरलोडिंग, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, वर्चुअल फंक्शन एंड इनहेरिटेंस, एंड दे विल आस्क स्टेट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेशन ऑफ कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, या फिर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ अ रन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेशन ऑफ अ रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। तो उसमें आपको इनहेरिटेंस भी डाला जाएगा, फिर आपको डिफॉल्ट आर्गुमेंट या ऐसे कुछ डालेंगे, या फिर वो पूछेंगे कि एक डाल देंगे वहां पे कि जैसे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग is the application of the runtime polymorphism, तो उसमें लिखेंगे वर्चुअल फंक्शन, फंक्शन ओवरलोडिंग, ऑपरेटर ओवरलोडिंग और इनहेरिटेंस। तो जिनको पता है रन टाइम का कौन सा है वो क्लिक करेंगे वर्चुअल फंक्शन को। फिर ऐसा भी क्वेश्चन आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेशन ऑफ रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, तो फिर वहां पे फंक्शन ओवरलोडिंग, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, इनहेरिटेंस, ऑल ऑफ दिस। तो ये चारों के चारों भी एप्लीकेशन नहीं है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के। ऐसे आपको क्वेश्चन 2-3 इसी के ऊपर आ सकते हैं। फिर हमने देखा था कि नॉर्मली जब भी हम, तो यहाँ पे पहले देखा था ऑपरेटर्स कौन कौन से, तो यूनरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर में क्या होता है, ऑपरेटर के साथ एक ही वैल्यू रहती है। बाइनरी ऑपरेटर में ऑपरेटर के साथ लेफ्ट में भी वैल्यू रहती है, राइट में भी रहती है। वो ऐसे भी रह सकती है या फिर वो ऐसे भी रह सकती है। ओके, वो ऐसे भी रह सकती है। फिर हमने देखा था नॉर्मली अब तक हमने जो प्रोग्रामिंग किया था उसमें कैसे किया, C1 डॉट सम C2। तो यहाँ पे इसका डेफिनेशन कैसे हो रहा था, रिटर्न टाइप कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स स्कोप रिजोल्यूशन सम इन ब्रैकेट कॉम्प्लेक्स C2, इसके लिए मैं बता रहा हूँ, ऐसे लिखते थे। लेकिन अभी सम की जगह क्या मिल गया, ऑपरेटर मिल गया। तो ऑपरेटर को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, ये इसका फंक्शन डिक्लेरेशन, क्योंकि आपको तो पता है कि जब भी हम फंक्शन यूज करते हैं तो फंक्शन डिक्लेरेशन लिखना ही पड़ता है। चलो वो अलग बात है, अगर आप फंक्शन को अगर क्लास में डिफाइन कर रहे हो तो फिर आपको लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर आप फंक्शन को क्लास के बाहर डिफाइन कर रहे हो, फंक्शन को आप क्लास के बाहर डिफाइन कर रहे हो तो आपको फंक्शन डिक्लेरेशन लिखना पड़ेगा। तो फंक्शन डिक्लेरेशन कैसे लिखेंगे, कॉम्प्लेक्स ऑपरेटर प्लस कॉम्प्लेक्स। और अगर फंक्शन डेफिनेशन कैसे लिखोगे, रिटर्न टाइप, आपका क्लास नेम, स्कोप रिजोल्यूशन, ऑपरेटर, फिर जो ऑपरेटर आपको ओवरलोड करना है वो प्लस है, माइनस है, प्लस प्लस, माइनस माइनस, और पैरेंथेसिस, और उसके अंदर जो आर्गुमेंट लगते हैं वो आर्गुमेंट क्या क्या लगते हैं मैंने आपको बता दिया। यूनरी ऑपरेटर है, मेंबर फंक्शन है तो 0 ऑपरेटर, यूनरी है, मेंबर फंक्शन है तो 1 आर्गुमेंट लगेगा। फिर आपका बाइनरी है, मेंबर फंक्शन है तो 1 आर्गुमेंट लगेगा। आपका बाइनरी है, फ्रेंड फंक्शन के थ्रू कर रहे तो आपको 2 आर्गुमेंट इसमें पास करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया था, प्लस बाइनरी, नॉर्मल मेंबर फंक्शन है तो एक ही आर्गुमेंट पास हो रहा था, प्लस बाइनरी फ्रेंड फंक्शन हो रहा है तो इसमें 2 आर्गुमेंट पास हो रहे हैं। तो ये 1 और 2 क्यों लग रहा है, दैट आई विल एक्सप्लेन यू ड्यूरिंग द प्रोग्रामिंग। ओके, तो ये कंपाइल टाइम का, क्योंकि ड्यूरिंग कंपाइल टाइम your function call will get bind or connected to the function definition, और run time में during run time your function call will get bind to the function definition depending upon the contents of the pointer। आप जो यहाँ पे पॉइंटर बनाते हो रन टाइम में उसमें क्या आ रहा है, depending upon that your function will get executed। ये डिफरेंस यहाँ पे दिया हुआ है। अर्ली बाइंडिंग माना कंपाइल टाइम में हम पॉइंटर यूज नहीं करते, यहाँ पे पॉइंटर यूज करते हैं। यहाँ पे पहले ही पता रहता है, यहाँ पे बाद में पता रहता है। इसको स्टैटिक बाइंडिंग भी कहते हैं, इसको डायनामिक बाइंडिंग में कहते हैं, और इसके एप्लीकेशंस। फिर रूल्स देखे देखिए, जो ऑलरेडी अवेलेबल है ऑपरेटर्स उनको ही हम ओवरलोड कर सकते हैं, न्यू बना नहीं सकते ऑपरेटर।
इवन हम ऑपरेटर का मीनिंग भी चेंज नहीं कर सकते। माना एडिशन है और एडिशन के अंदर में माइनस कर रहे हैं, तो वो भी सब्सट्रैक्शन भी नहीं कर सकते। प्रेसिडेंस एसोसिएटिविटी की मेंटेन रहेगी। फिर आपके ऑपरेटर्स आप फिर यहाँ पे लिख सकते हो कि कौन कौन से ऑपरेटर एज अ फ्रेंड फंक्शन ओवरलोड नहीं होते, तो ये 4 आपके एज अ फ्रेंड फंक्शन ओवरलोड नहीं होते हैं। ओके, एज अ मेंबर फंक्शन ओवरलोड होते हैं ये 4, लेकिन एज अ फ्रेंड फंक्शन वो ओवरलोड नहीं होते। फिर आपके वही 4 रूल यूनरी बाइनरी वाले। ओके, ये सब आप यहाँ पे लिख सकते हो, और ये भी आप ध्यान में रखो। इसके भी ऊपर 2 क्वेश्चन कि कौन से ऑपरेटर्स ओवरलोड होते हैं वो आपको वहाँ पे पूछेंगे, कौन से नहीं होते हैं एज अ फ्रेंड फंक्शन तो वहाँ पे दिए हुए रहेंगे, कौन से नहीं होते हैं तो इसमें से 4 दिए हुए रहेंगे, 3 और इसमें से 1 दिया होगा, तो फिर आपको लिखना पड़ेगा कि एज अ फ्रेंड फंक्शन। तो ये भी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एज अ फ्रेंड फंक्शन में इम्प्लीमेंट होते हैं, लेकिन इसको एज अ मेंबर फंक्शन हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ओके, ये जो है इतने 6, इसमें से 4 ही, तो ये बिल्कुल ही ओवरलोड नहीं होते, ना मेंबर फंक्शन के थ्रू ओवरलोड होते हैं ना फ्रेंड फंक्शन के थ्रू ओवरलोड होते हैं। लेकिन ये जो 4 है ये फ्रेंड फंक्शन के थ्रू ओवरलोड नहीं होते, लेकिन मेंबर फंक्शन के थ्रू ओवरलोड हो सकते हैं। फिर फंक्शन ओवरलोडिंग तो हमने पहले ही देख लिया, फिर ये आपको बता दिया था। सो इन दिस वे we have defined the concept of the polymorphism. In the next section we will start with the programming.